13 देशों के 50 प्रतिनिधियों ने सीखा देश और विदेश की खेती का अंतर। फ्रांस की महिला किसान ने भारत में गन्ने की खेती का अनुभव किया साझा। मैक्सिको का पुरुष किसान भारत में खेती का कौन सा अनुभव लेकर लौटा। इंडिया से फ्रांस और मैक्सिको के किसानों ने भारत दौरे का साझा किया अनुभव। मैक्सिको के अलावा अन्य देशों के भी प्रतिनिधि पहुंचे थे सीतापुर। भारत में गन्ने की खेती को लेकर फ्रांस की महिला किसान आई हुई हैं और वो भी समझने का प्रयास कर रही हैं और हम इनसे जानकारी जुटाएंगे आज। दरअसल जवाहरपुर चीनी मिल के जो जीएम हैं उनके ज़रिए, बेग साहब के ज़रिए, कि इनसे बात कर बताएं कि जो इन्होंने यहाँ पर अनुभव आज प्राप्त किए हैं वो अनुभव क्या है। What is your experience? What is your learning after this visit? Well, I still have a lot to learn, that's for sure. I am not sure what to answer, sorry. Yes, I'm learning a lot about the practices that you use in India, which are very different from the ones that we use in France, in Réunion Island, where I come from. On my farm, there are a lot of things that we wouldn't be able to use, but it makes us think about, okay, what can we do different, and why you do things this way or this other way, so that it opens our minds to different ways of practicing and of planting sugarcane, I guess. तो इन्होंने क्या अनुभव महसूस किया जो इन्होंने साझा किया। हम चाहते हैं, चूँकि हिंदी का चैनल है, इन्होंने इंग्लिश में स्पीच दी है, आप उसको डिफाइन करिए। इन्होंने पहले तो ये कहा कि मेरे पास अभी बहुत कुछ सीखने के लिए बाकी है और हमारे यहाँ जो खेती हो रही है वो यहाँ से कुछ डिफरेंट है, यहाँ की टेक्निक से डिफरेंट है और हम इस तरह की टेक्निक्स में खेती नहीं करते जहाँ ये जैसे यहाँ चलती है, और हम इसको भी सीखेंगे और अपने आप इसको अडॉप्ट करेंगे। तो इनसे ये जानकारी चाहेंगे कि वहाँ की गन्ने की खेती बेहतर है कि इनको भारत की खेती जो गन्ने की है वो बेहतर लगी। What is your experience what is in your views, is there any comparison between India and France in agriculture? Well, we plant the same plant. We all of us produce sugarcane and produce sugar, produce rum, produce bioethanol. So there are always things to be compared. But then our context is different. Our weather, our soil, the price of manual labor, for example, is very different between France and India, of course. So that is why some things can be implemented in France or in Réunion Island, and some things cannot, because we might use the same plants and sometimes the same variety of sugarcane, but our context is always different, and that is why some things can be similar and some things are very different. So, yeah. देखिए, फ्रांस और भारत में जो गन्ने की खेती है उसमें क्या अंतर है, ये बता रही थी जो महिला किसान फ्रांस की आई हुई हैं। इसको हमें बेग साहब फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। आपका कहना है कि जो फ्रांस है वहाँ की क्लाइमेट, वहाँ की सॉयल हमारे यहाँ से काफ़ी डिफरेंट है, और दूसरा जहाँ जो आपके यहाँ प्रॉब्लम होती है वहाँ मैकेनाइजेशन बहुत ज़्यादा है, लेबर की प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से जो चीज़ें हम लेबर इंटेंसिव होने के बाद जो काम हम कर लेते हैं इंडिया में, वो फ्रांस में करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। देखिए, वहाँ और यहाँ में जो दिक्कत है उसको बता रही थी, और भारत में जो अच्छी चीज़ें हैं, जो यहाँ का अंतर बता रही थी वो तो बता ही रही थी, जो अच्छी चीज़ें हैं वो भी आपने बताया। अब हम चाहते हैं कि इनके जो साथी आए हैं, ये किसान हैं या उद्योग जगत से आए हैं, उनके बारे में ज़रा। Sir, please introduce yourself and brief introduction, and after that please tell me your experience after the visit. Of course. My name is Jorge Lerdo de Tejada from Mexico. First of all, I wanted to thank the sugar industry from India. It has been an incredible experience to learn how India is developing the sugarcane industry. So for that, I want to thank you. Regarding my experience, I just wanted to start with the different type of seeds that India is producing. It is so much interesting how we can implement different seeds in different countries with different environments, with different
cultures and with different manual labor. The second thing that I've learned is how to crop and how to fertilize the soil. It's impressive how you're doing this in England, in India, with the manual labor, and especially the yields that are becoming increasingly higher every year, and yet you're still using new seeds to constantly renew your crops. So those are the things that I believe that are very common amongst our countries. Again, I believe that India is doing tremendously well, not only for the sugar industry, but also implementing the use of 10% ethanol. And that is going to be huge for your industry, for your sugar industry, and for the country. I believe that that will have an impact in your environment. I'm an environmentalist, and I think that India is going to benefit from sugar cane and sugar cane ethanol. तो देखिए फ्रांस में गन्ने की खेती कैसे होती है और भारत में गन्ने की खेती में क्या अंतर है, क्या प्रॉफिट है, क्या तकनीकी है, इसको साझा कर रहे थे। फिर एक बार जानना चाहेंगे बेग साहब से कि इनका जो अनुभव था वो क्या इन्होंने साझा किया। इन्होंने जो आप तो मैक्सिको से हैं, आपने जो बताया कि यहाँ की जो हमारी जो प्लांटिंग की टेक्निक्स हैं, प्लस जो नई नई वैरायटीज़ पे हम लोग रिसर्च करते हैं, नई नई वैरायटीज़ का जो प्लांटिंग करते हैं और प्लांटिंग का जो मेथड है, उसके साथ साथ जो फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन के मेथड्स हैं उसको आपने अप्रिशिएट किया। उसके साथ साथ आपने ये कहा कि ये जो हम लोग एथेनॉल बना रहे हैं, 10% ब्लेंडिंग पे हम जा रहे हैं, भारत सरकार का एक विजन है, इसको हम 20% तक ले जाएंगे। ये इसको उन्होंने बहुत सराहनीय कदम बताया है और उन्होंने ये भी कहा है कि चूँकि आप इन्वायरमेंट से भी जुड़े हैं मैक्सिको में, तो अगर एथेनॉल यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल है और आने वाले टाइम के लिए ये एक इंडिया के लिए बूंद प्रूफ होगा। देखिए इथेनॉल को लेकर के भी इन्होंने भारत की जो इथेनॉल विधि है उसमें जो अचीवमेंट हो रहा है उसकी बड़ाई की, उसको सराहा। और ये निश्चित तौर पर भारत जब पहुँचे 13 देशों के 50 प्रतिनिधि वो मौके पर जाकर रामगढ़ चीनी मिल यहाँ की एक एक विधि को उन्हें दिखा रही है। वो खुद जा कर के कि गन्ने की बुआई कैसे की जाती है, कैसे चीनी मिल किसानों के लिए मददगार साबित हो रहा है, उनके लिए कौन कौन सी नई नई तकनीकें ला रहा है। पहले गन्ने की बुआई कैसी होती थी, अब गन्ने की बुआई कैसे करते हैं। पराली जलाने को लेकर अक्सर मुकदमे हो जाया करते थे, उससे निजात दिलाने के लिए रामगढ़ चीनी मिल ने कौन सा यंत्र ईजाद किया, कितनी सब्सिडी देती है किसानों के लिए और कितनी कारगर हो रही है, ये सारी चीज़ों को आज ये पूरा प्रतिनिधिमंडल जानने का प्रयास कर रहा है। बेग साहब जानना चाहेंगे जो ये 50 आपका जो प्रतिनिधिमंडल का दल आया हुआ है, इनसे आपकी लगातार बात हो रही, मैं देख रहा हूँ, इनको आप समझाने का प्रयास करें और इनके अनुभवों को आपने 2 देशों के अनुभवों को आपने साझा किया। क्या कुल लब्बो-लुआब निकला यहाँ के भारत का जो ये गन्ने का जो एरिया है, गन्ने के जो किसान हैं, जो चीनी मिल है, उसको लेकर ये क्या मन में लेकर के जा रहे हैं, कैसा इन्हें अनुभव महसूस हुआ? देखिए 2 चीज़ें हैं। जब कोई आदमी बाहर से भारत को आता है तो उसके माइंड में एक अलग पिक्चर होती है कि भारत में ऐसा ऐसा होगा, बट जब वो ग्राउंड पे आता है तब वो देखता है कि भारत भी एक बहुत ही डिफरेंट तरह का कंट्री है। क्लाइमेट यहाँ की डिफरेंट है, यहाँ का सॉइल डिफरेंट है, लैंड होल्डिंग छोटी छोटी है, मैकेनाइजेशन की कमी है, बट उसके बाद भी भारत अपने एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दे रहा है डिफरेंट चीज़ों में, चाहे वो शुगर केन रिकवरी हो, चाहे वो एथेनॉल का प्रोडक्शन हो, चाहे शुगर केन का प्रोडक्शन हो, चाहे कल्चर की ओवरऑल ग्रोथ हो। इसमें कहीं ना कहीं भारत बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आप लोगों का एक्सपीरियंस यही है कि आप लोग एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन, जो कि गन्ना एक सब ट्रॉपिकल क्रॉप की सब ट्रॉपिकल एरिया में हम लोग बो रहे हैं, यहाँ के ओरिजिनल क्रॉप नहीं है, बट हम लोग फिर भी इसको बहुत सक्सेसफुली ग्रो करा लेते हैं अपने फार्मर्स से। हमारे फार्मर्स बहुत अच्छे एफर्ट्स करके इसको ग्रो कर रहे हैं। तो ये भी इनके लिए एक लर्निंग है कि आपका टेम्परेचर 5 डिग्री भी होता है, 45 डिग्री भी होता है। इस बिग वैल्यू जो इतना हैवी चेंज है, इसके बाद भी आप लोग अपनी क्रॉप को कैसे सस्टेन कराते हो, ये इनके लिए एक बड़ा मतलब अमेजिंग इनके लिए है कि सब कैसे करते हो, कैसे रेटून मैनेजमेंट करते हो, कैसे सेकेंड क्रॉप मेंटेन कर पाते हो, वो इनके लिए अच्छी लर्निंग है। और हमारा पर्पज़ ये है कि हम इनको अपनी जो हमारी कल्चरल चीज़ें हैं वो इनके साथ हम शेयर करें। हमारे कल्चर में डेफिनेटली हम दूसरों से बहुत बेहतर हैं और वो कल्चर पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं जो हम लोगों ने इंडिया में अडॉप्ट किया हुआ है, और वो कल्चर ही हमको आगे लेकर जा रहा है। बिल्कुल, तो किसान प्रधान ये भारत है और यहाँ का किसान किस तरीके से विपरीत वातावरण में अपनी फसल को कैसे वो जो है उपजाऊ बनाता है, कैसे उसका उत्पादन बेहतर करता है, इसका लोहा ये विदेश से आए लोग भी माने और ये निश्चित तौर पर यहाँ से जो बहुत सारी चीज़ें साझा करके जाएंगे और उसको अपने देशों में भी ईजाद करने का प्रयास करेंगे। तो सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन सिद्धांत पांडे के साथ पंकज सिंह गौर।
आगे देखिए 20 फरवरी सोमवार को कोलंबिया से स्टडी करने भारत आए छात्र ने गन्ने की फसल को लेकर क्या कुछ सीखा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।